So we have started the revision. So successfully we have completed the revision of our first chapter, that is nature and significance of management. From today onwards we are going to start the revision of our second chapter, that is principles of management. So basically first we should know about what is a principle. So principle means these are the fundamental statement of truth that provides the guidelines for managerial thought and action. So basically princiपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स यानी कि जो हम तत्व करके बोलते हैं ना, सो फंडामेंटल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया गया है, एक ऐसा लिखित प्रिंसिपल है, ट्रूथ, और वो सच है, दैट इज नॉट अ false, that is not a fake, this is a truth that provide guidelines for the managerial thought and action. तो वो किसके लिए हेल्प होती है? जो भी मैनेजरियल अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट जो भी हम विचार करने वाले हैं और जो भी हम एक्शन मतलब कृति करने वाले हैं, उस चीज के लिए हमें कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो किसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे? जिसके बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं, जिसको रख के एनालाइज करके वो डिसीजन लेते हैं, उस ट्रूथ को, उस स्टेटमेंट को वी आर गोइंग टू कॉल एज अ प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, एक ऐसा गाइडलाइन कहते हैं, प्रिंसिपल्स है, जो भी मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता ही होता है, तो उस मैनेजर को सम ऑफ दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम एंड टू टेक द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, मैनेजर आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू टेक एनी एक्शन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जनरल गाइडलाइन बनाई गई है, जो भी मैनेजर है उन्होंने सभी ने मिलकर उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने जनरल गाइडलाइन बनाई गई है। वो गाइडलाइन क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते वक्त, एक बिजनेस चलाते वक्त कुछ तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो प्रॉब्लम में से हम बाहर कैसे निकालेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन। सो वो डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन रहना चाहिए, उस गाइडलाइन के बेस्ड वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो वो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट का कि कौन सा भी डिसीजन लेने के लिए एक गाइडलाइन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू चाहिए, सो उसके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। सो सच things, such principles we are known as the principles of management. So in today's video we are going to discuss about what are the nature, or we can call the feature of principles of management. तो principles of management कैसे रहते हैं? So first one, universal applicable, that means it can be applied all over the world, can be applied into all type of the organization and at all levels of management. So universal applicable means what? We can apply these principles at all over the world. We can apply it for the small organization, we can apply it for the big organization, we can apply it within the private sector, within the non-private, that is the public sector, or within the global level we can organize, we can apply these principles. So there is no restriction where we have to apply these principles. We can apply these principles all over the world. If your business is a business organization or if your business is a non-business organization, that not be the matter for it. What are the principles made by the managers? These principles we can apply all over. That is an universal. So can be applied to all type of organization and all level of management. So within the organization also, what are the levels of management? Top, middle and lower level. So we can, all level of manager can apply this principle when they are going to take any managerial decision. So universal applicable का मतलब क्या है? There is no limitation, वहाँ पे कोई भी limitation नहीं रहता, कहाँ पे principle यूज करना है, that is not any problem. You can use that principle at anywhere, कहाँ भी आप वो principle यूज कर सकते हो, according to situation आप वो principle यूज कर सकते हो। आप छोटे, आपका बिजनेस छोटा है तो भी यूज कर सकते हो, बड़ा है तो भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस है आपका, पब्लिक सेक्टर में बिजनेस है आपका, कहाँ भी आप ये प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो? कुछ भी मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जनरल गाइडलाइंस। So these are the only general guidelines. Okay, there is no any ready-made solutions are there, not static. These are not fixed. Can't be applied blindly in all cases. Can't be applied blindly without any thinking, without any checking the priorities. You can't be apply these things. Guidelines to solve the problems, not ready-made solutions. So whatever the principles of management made, these are only general guidelines. By keeping on a focus, you have to make your solution. Okay, that means these are not static, these are not fixed. It is flexible. You can change according to the situation and can't be applied blindly only. Just we are told this is a universal applicable. हमने अभी देखा है कि ये सभी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, बट आँख बंद करके सभी जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाइडलाइंस ऐसा फिक्स्ड ऐसा ही सॉल्यूशन लेना लिखना है, इट इज नॉट द मैटर, ऐसा ही डिसीजन लेना है, एक कंपल्शन नहीं रहता। आप आपके सिचुएशन के अनुसार उसमें मतलब इट इज ओनली अ फॉर्मूला। जैसे आप मैथ्स सॉल्व करते हो, मैथ्स में कैसे फॉर्मूलाज रहते हैं, ओके, सो दिस प्रिंसिपल्स आर लाइक अ फॉर्मूला टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो एक फिक्स्ड फॉर्मूला रहता है, सो उसके बेसिस पे जो भी नया प्रॉब्लम आएगा उसमें वैल्यू डलेगी और आपका आंसर आएगा। सेकेंड सिचुएशन में मे बी आपका वैल्यू क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा। सो इट नॉट बी द थिंग आंसर सभी जगह सेम आएगा ऐसा नहीं है। मैंने अप्लाई किया, मेरा आंसर डिफरेंट है, दूसरे ने दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किया, उसका आंसर डिफरेंट आएगा। मीन्स व्हाट, these principles are just like a formula, how you have the formula for to solve the maths. Okay, maths solve करने के लिए कैसे प्रॉब्लम रहते हैं, तो उनके लिए फिक्स्ड इक्वेशन बनाया गया रहता है, सूत्र बोलते हैं वो फिक्स्ड इक्वेशन। सो इक्वेशंस आर लाइक दिस जनरल गाइडलाइंस। सो जो भी प्रिंसिपल है, दिस इज ओनली द इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर problem. So if not the thing, always you are going to get the same answer. The answer may be you are going to get a differently. So these are only general guidelines, not a ready-made solution. You have to find out your solution according to your problem by using this equation or by using these guidelines. The next nature is the next nature of principles of management is formed by practice and experiments. So not developed overnight, because developed after deep research, observation and experience. So जो भी principles बनाया गया है, what are the principles we will see afterward. There are 14 principles. Scientific principles of management are there 4, and general principles of management total 14 principles are there. We will discuss afterward. But जो भी ये प्रिंसिपल बनाया गया है वो एक ही दिन में एक ही रात में बनाया गया नहीं है। कब बनाया गया है? तो जो भी मैनेजर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके यहाँ कौन सा कॉमन प्रॉब्लम आया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन के आधार पे ऊपर कैसे हम बिजनेस में डिसीजन लेना चाहिए। सो इट इज गोइंग टू बी मेड विद रिसर्च। सो उसके ऊपर मैनेजर ने रिसर्च किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, सभी जगह सेम प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं, तो डिसीजन कैसा लिया है वो ऑब्जर्वेशन किया है, एंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के बाद ही दिस प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी मेड। सो formed by the practice and experimentation. So मैनेजर को जो मैक्सिमम टाइम्स प्रॉब्लम आया है उनमें मैनेजर ने रिसर्च किया है, उसके बाद सबका प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन करके उनके एक्सपीरियंस बेसिस पे एक जनरल गाइडलाइन उन्होंने बनाई गई है। दिस इज द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन चेंज द थिंग। सो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स these are the not rigid. So जो भी principles of management है, what are the principles of management are, these principles are not fixed. Okay, so we told the principle, but application it is depend upon you. Okay, so these are not fixed, so according can be modified according to the situation.
जो भी प्रिंसिपल्स है बनाया गया है, these are not fixed. ऐसा ही आपको डिसीजन लेना है, ऐसा कंपल्सन नहीं है वहाँ पे। सो आपके बिजनेस में सिचुएशन कैसी है, इट डिपेंड अपॉन दैट। आपके बिजनेस के सिचुएशन के अनुसार आप उस प्रिंसिपल में चेंज कर सकते हो। सो टेक एग्जाम्पल जस्ट जो भी टाइम का प्रिंसिपल है टाइम। ओके, सो वॉट एवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। ओके, सो वॉट एवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्शन होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, सो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरा प्रोडक्ट होगा, सो सेम टाइम उसको भी होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। सो फर्स्ट आपके खुद के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लगता है डिसाइड करो, दूसरे आदमी को मे बी दे आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट टाइम, अदरवाइज अनदर टाइम। एग्जाम्पल इफ यू आर टेकन, so you can run your business इन शिफ्ट वाइज 8 आवर का पैटर्न करके आप शिफ्ट वाइज रन कर लो, टाइम आपका खुद डिसाइड कर लो, इट इज नॉट कंपल्सन। सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन चेंज द थिंग्स, यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स विद इन, यू कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बिकॉज ऐसा फिक्स कंपल्सन नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो सिचुएशन के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। द नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर। So mainly behavioral means what? They are formed to guide employees, influence behavior of employees, and improve the relation between superior and subordinate. So mainly behavioral का मतलब क्या है? So these principles are mostly depend. If organization is there means what? To run that organization we require employees or workers or a group of people. Okay, so each individual within that they have their different attitude. Okay, so what these principles are made is totally mainly behavioral of that employees or group of people. So जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो हम मशीनरीज के लिए नहीं बनाया गया है, इट इज मेनली बिहेवियर, यानी कि इंसान के लिए वो प्रिंसिपल बनाया गया है। क्योंकि एक बिजनेस रन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, तो हमें लोग चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल भी रिक्वायर्ड, इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड। उसमें हर एक आदमी अलग अलग रहता है, उनका सोच, उनका एटीट्यूड, उनका बैकग्राउंड अलग रहता है। सो जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है वो लोगों के लिए बनाया गया है। सो मोस्टली टू गाइड द एम्प्लॉइज, जो प्रिंसिपल बनाया गया है टू गाइड योर वर्कर्स, आपके काम करने वाले लोगों को गाइड करने के लिए बनाया गया है। सेकेंडली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। सो जो भी आपके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस, असर डालने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो खुद का काम अच्छे तरीके से करे। मीन्स इन शॉर्टली फॉर द मोटिवेशन ऑफ योर एम्प्लॉइज एंड इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपेरियर मीन्स ऊपर लेवल का जो भी इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ज़्यादा सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट, यानी नीचे लेवल में जो भी सबऑर्डिनेट है। यानी कि सुपेरियर का एग्जांपल ले लो, जो भी मैनेजर आएगा, these all things comes under the superior level, or who are the workers comes under the subordinate level. Okay, so improve the relation between superior and subordinate. So manager and worker के बीच में जो भी relation है वो improve होने के लिए these principles are going to be made. So why these things are important? Once the behavior of employees means employees को motivation करना, that is okay, employees को guide करना, that is okay. So why the relation between subordinate and superior should be improved? Because what the superior think about the subordinate, they are going to think about the superiors who are workers, they are nothing for the good, so they have the different attitude, backgrounds. That is the mentality of superior, that is the mentality of manager. And what the subordinate going to think about the superior? So means superior are not going to pay us fair salary, otherwise they are going to give a burden of work. So that is the attitude of subordinate. यानी कि मैनेजर क्या थिंक करता है वर्कर्स के बारे में, कि वर्कर्स काम करने में लेजी है, वो काम अच्छे तरीके से नहीं करता, ऐसा मैनेजर का एटीट्यूड रहता है। और वर्कर्स का क्या एटीट्यूड रहता है कि मैनेजर हमें ज़्यादा काम दे रहा है, पैसा कम दे रहा है। सो ये जो एक दूसरे के बारे में अपोजिट एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए दिस प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी मेड, बिकॉज मैनेजर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
So both should be coordinate with each other. So to coordinate with each other, these principles are going to help to make the coordination between superior and subordinate. Next, based on the causes and effect relationship. So what is the meaning of it? Principles applied in the situation what might be affected. Means based on the causes and effect relationship. So these principles are made in the trial and error method. And what are the cause and what are the effect on that problem? According to that, these principles are going to be applied. Okay. Means principles applied in situation what might be affected. Means all situations are not same. Situations are going to be changed. So according to the situation, if you use the principle, the effect may be the different for the different organization. So we are not going to sure about the effect is like that. So it is an only general guideline. In this problem, this may be the effect. So इसका मतलब क्या है? जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है, वो पर्टिकुलरली जैसे आपको कह नहीं सकते कि इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई किया करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ऐसा हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक की सिचुएशन थोड़ी बहुत अलग रहती है। तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, उसके ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा। सो टेक एग्जाम्पल, क्या बताया गया है कि मोटिवेशन करना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन करना। सो वहाँ पे भी दो टाइप है, एक तो फाइनेंस पैसे से मोटिवेशन करना, नहीं तो एक ट्रेनिंग देके नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव देके मोटिवेशन करना। बट टू थिंग्स आर देयर, बट हम ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बता सकते विच माइट बी अ गुड। एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसों से लोग मोटिवेट हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग से मोटिवेट हो सकते हैं, ऐसा फिक्स बता नहीं सकते। व्हाट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ऊपर डिपेंड है कि ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद क्या होगा। ये जनरल गाइडलाइन रहता है, कौन सा अप्लाई करना है डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट कंटीजेंट, कंटीजेंट में डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। सो एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सिचुएशन। एग्जांपल फेयर सैलरी। सो कंटीजेंट मीन्स व्हाट, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है उसका असर क्या होगा, एक जनरल गाइडलाइन बताई गई है। बट आपकी सिचुएशन के अनुसार जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम अराइज आई है उसके अनुसार, उसके नेचर के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार असर, दैट इज इफेक्ट में भी डिफरेंट। मीन्स व्हाट, फेयर सैलरी, एक प्रिंसिपल बताया गया है कि एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी देना है। फेयर यानी कि कितना, एक्चुअली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना देना है फेयर। फेयर सैलरी मतलब कितना, अब इट डिपेंड अपॉन द लॉट ऑफ फैक्टर्स, दैट इज द कंटीजेंट। जो भी हमें प्रिंसिपल बनाया गया है वो प्रिंसिपल और सारे बहुत फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड रहता है, दैट इज द कंटीजेंट। मतलब एक प्रिंसिपल है फेयर सैलरी देना लोगों को। सो फेयर सैलरी यानी कि वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर कंटीजेंट है। सो कौन से फैक्टर आएंगे तो फेयर सैलरी के लिए? एक तो एजुकेशन है, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देना, मतलब अच्छी मतलब कितना देना, ओके, अच्छी मतलब कितना देना है सैलरी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके काम के नेचर के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उनके टाइम पीरियड के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, ये सभी चीज़ें के ऊपर उनकी सैलरी डिपेंड है। मीन्स जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है वो प्रिंसिपल और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं। सो दिस आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। So just we have discussed about what is a principle, what is the principles of management, and what are the nature of principles of management. It is first nature, it is universal applicable, general guidelines formed by the practice and experiments, flexibility, mainly behavioral, based on causes and effect relationship, and last one, contingent. So I hope you got the clear concept about what are the principles of management, what are the nature of principles of management. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.